Thursday, 11 a.m. in the morning. We come up with the Hindu analysis. Today is 30th January, that is Tuesday, and we are here with the Hindu analysis of that. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? If I am audible, just write in the comments. Yes, sir, you're audible. Okay. So let's start with the first article. The article talks about Soren untraced as ED teams visit house over land fraud case. So basically, Mr. Hemant Soren, he is actually the chief minister of the state of Jharkhand currently. I hope you are aware. So recently, this has been in the news that the enforcement directorate visited the office. Okay, so the enforcement directorate on Monday researched for Jharkhand Chief Minister Hemant Soren in Delhi and Ranchi. Okay, so basically, and in connection with money laundering and case linked to land scam and all. So I hope you are aware. The job of enforcement directorate is to enforce the Prevention of Money Laundering Act, Foreign Exchange Management Act, and Fugitive Economic Offenders Act. I hope you are aware of these. Okay, so basically the main job is to prevent money laundering. Main job है enforcement directorate का. We have discussed it earlier as well. So basically, when actually enforcement directorate reached to the Jharkhand CM's house in Ranchi, the chief minister was not available. Untraced मतलब नहीं मिले कि they actually reached through email, phone number, everything, but they could not reach to the chief minister by calling or by through mail or by reaching to the house and all. So this was actually mentioned on the first page. And the Soren, actually the chief minister said that it is the agency is driven by political agenda. That is what the chief minister have said. So this was in the news. So let's wait for further news to come. Now, since we are talking about the current chief minister of Jharkhand, please tell me he belongs to which of the following political party? Indian National Congress, Jharkhand Mukti Morcha, Ajsu Party, Rashtriya Janata Dal. What is the right answer? Anyone? And everyone, please press the like button and subscribe to our channel. The Chief Minister of Jharkhand belongs to which of the following political party? Anyone? Yes, Harshvardhan, very good. Jharkhand Mukti Morcha, B is the right answer to this question. So this is the Chief Minister of Jharkhand, and he belongs to this. This is the logo of his political party, Jharkhand Mukti Morcha, or Jharkhand Liberation Front in English. Okay, so B is the right answer, and they are actually having alliance, what we call it as Mahagathbandhan, even in Jharkhand. So Jharkhand Mukti Morcha is having alliance with Indian National Congress plus RJD plus NCP, Nationalist Congress Party. So Congress के साथ alliance है, then RJD, which is Lalu Yadav's party, then NCP is of Sharad Pawar's party. So they have formed a Mahagathbandhan or a grand alliance in the state of Jharkhand, and they are running the government. Yes, Astha, Vasti, Rishi Kumar Jha, you all are right. Okay, so here it is. Actually, if you see it, the Jharkhand Legislative Assembly is having 81 seats, so they need at least 42 seat MLAs to have their government. So they are having 48 MLAs, JMM 29, 17 Congress, 1 RJD and 1 CPIML. So they are having total 48 MLAs. Okay, so they are running the government. Okay. First page में एक और article थी ना, top court DGP flays bid to paint Tamil Nadu government as anti-Hindu. So basically DGP is Director General of Police, and Director General of Police means the senior most police officer of the state. Police officer of the state. So actually there were some hearings where actually in a response to a petition alleging that an oral order was issued by the Tamil Nadu Chief Minister to ban the live telecast and conduct of religious events in connection with the consecration of Ram Temple on 22nd January. The DGP has said that there is no such thing. मतलब ऐसा Chief Minister ने कोई order नहीं issue किया है. According to the DGP, the Chief Minister has not issued any oral order to ban the live telecast of Ayodhya event that was done on 22nd January. तो DGP साहब ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है. That is not correct according to this. The DGP said in the top court, मतलब Supreme Court में कहा जाके, ठीक है. So that is what you should be knowing it. Okay, if you're watching this class, नीचे जाना एक link है. One-on-one counseling session is there. So click on this link and open. You will get this link, है ना. So fill the email, full name, mobile number, and all.
and our team will approach you, will inform you about the courses and all. ठीक है? Okay. एक और फर्स्ट पेज में आर्टिकल थी, जज वर्सेस जज, सुप्रीम कोर्ट टेक्स ओवर द केस फ्रॉम हाई कोर्ट. And what actually was there? Actually, there is some issue with the 2 judges of Calcutta High Court. ठीक है? So that's an issue है ना. हुआ ये कि actually 2 judges हैं, Justice Abhijit Gangopadhyay and Justice Somen Sen. Actually, so these 2 judges are actually have locked horns, you can say, है ना. So actually there are some reasons because of which we are not going in detail, but एक basic idea होना चाहिए कि Justice Abhijit Gangopadhyay actually passed an order. देखो होता क्या है, पहले आपको एक चीज समझना होगा. हाई कोर्ट में a single judge bench order, अगर सिंगल जज ने कोई ऑर्डर पास किया, so it can be appealed in a division bench. डिविजन बेंच मतलब 2 जज की बेंच. ठीक है? एंड 2 जज कैन ओवररूल द जजमेंट ऑफ 1 जज. ठीक है? तो जनरली रूल्स के हिसाब से ये होता है कि अगर सिंगल जज ने, हाई कोर्ट के किसी सिंगल जज ने कोई ऑर्डर पास किया तो डिवीजन बेंच उसको पलट सकता है. ठीक है? तो दिस हैपेंड रिसेंटली. अ सिंगल जज बेंच ऑर्डर वाज ओवरटर्न्ड बाय अ 2 जज बेंच. Okay, so it was overturned by Justice Somen Sen and Uday Kumar. So that is why, I mean, this has started, I mean, the reason that this became the reason for the tussle between this judge and Justice Somen Sen. Okay, that is what the reason was. तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैटर जो है थोड़ा सा न्यूज में आने लगा, when it started coming in the media and all, Supreme Court decided to they decided to set up a special sitting on 27 January and all. ठीक है? तो इन्होंने इन पर इल्जाम लगाया. जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय said that Justice Sen is acting for some political party, because you should be knowing it that technically the judges, the high court judges or supreme court judges or lower judges are supposed to be neutral, है ना, non partisan जिसको कहते हैं. He or she should not support any political party openly, right? A judge is supposed to be neutral. Okay, so that is what the allegation is. Now the matter was actually taken over by the Supreme Court. तो खुद से ले लिया. तो लिखा ना, suo motu means by itself. So even, I mean, when no one has filed a petition or when no one has filed an appeal, still the judiciary, the Supreme Court takes the matter by itself. That's called as suo motu. इन्हें खुद से matter ले लिया. और ये mentioned है, देखो, Article 139 capital A. If you read, it says, where cases involving the same or substantially the same question of law are pending before the Supreme Court or one or more High Court or before 2 or more High Courts, the Supreme Court is satisfied on its own motion or an application made by Attorney General that it is a matter of general importance, है ना, the Supreme Court may withdraw the case before the High Court and dispose all the cases to itself. है ना, साफ लिखा है. मतलब ये है कि अगर कोई मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, सिंपल भाषा में बता रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर ट्रांसफर कर सकता है. ये अगर 2-3 मल्टीपल हाई कोर्ट से पेंडिंग है तो अपने पास बुला सकता है वो केस. ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर टू इटसेल्फ द हाई कोर्ट एनी पेंडिंग पिटिशन इन द हाई कोर्ट और एनी सच थिंग. ठीक है? तो ये हुआ है. एंड नाउ द सुप्रीम कोर्ट विल हियर द मैटर. सो लेट्स वेट फॉर द सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन ऑन दिस. ठीक है? ओके, हेमंत सैनी, वेलकम. Actually, every Monday, from Monday to Thursday, we conduct the Hindu analysis, 11 a.m. You can watch it. That would be very, very beneficial. ठीक है? Okay. So go to our app. यहाँ पे talk to our counselor होगा. Click on talk to our counselor. We will get to know more about. You will get to know more about our courses. So download our app. Go to CLAT section and go to talk to counselor. And on 4th February, we'll be having on 11 a.m. in the morning. We'll be having a scholarship test. So if you qualify scholarship test, you will get up to 90% off on all our paid courses. So this is the paid course for 2025. 380 plus hours of live session, 300 plus recorded videos. If you have any question, call on this number. ठीक है? Regarding the course and all. ठीक है? ये 2025 का test series है. Okay, let's move on further with this growth mantra can be injurious to society. Growth mania. ठीक है? Actually, the author is talking about कि growth तो होना चाहिए, but he's focusing on inequality as well. That inequality needs to be reduced. सिर्फ growth से कुछ नहीं होता है ना? That he's talking about the World Economic Forum, talking about that India would reach $10 trillion economy and all. ठीक है? अब देखो, जैसे currently आप देखोगे, so India's economy is $3.73 trillion, है ना, nominal GDP के terms में. अच्छा, please write in the comment section कि ट्रिलियन में कितना zeros होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट 3.73 into 10 to the power x, तो x कितना होगा बताइए.
So trillion has how many zeros? So this is actually $3.73 trillion economy है. And there is Indian government plan is कि by 2025 we should reach $5 trillion, है ना? तो भारत सरकार का ये टारगेट ये है कि 2025 तक $5 trillion इकोनॉमी हो जाए. And in fact, the World Economic Forum chief had said that India will reach $10 trillion economy in future. तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चीफ हैं बॉर्ज ब्रेंदे. इन्होंने ये कहा है कि अभी तो इंडिया की जो इकोनॉमी $3.73 trillion है, ये फ्यूचर में $10 trillion तक जा सकती है. ठीक है, दैट इज व्हाट ही हैज सेड. तो इसी को कोट कर रहे हैं ऑथर, है ना? द ऑथर इज कोटिंग द सेम. है ना? पीएम मोदी हैज सेड दैट इंडिया एम टू बिकम $5 trillion बाय 2024, बल्कि 2024 तक, है ना, नॉट 2025, बाय 2024. एंड दिस इज आवर टारगेट दैट आवर इकोनॉमी शुड बिकम $5 trillion. ठीक है, अभी जो है $3.73 trillion के आसपास है. ओके Okay, so growth is a legitimate aspiration in India, where the majority of the population is yet to attain a reasonable standard of living. Indeed, it should remain on the table and all. So these are the things being talked about. अब देखो, ग्रोथ अच्छी बात होती है, ठीक है, बट ग्रोथ जब हो रहा है तो इक्वली ग्रोथ होना चाहिए ना. मतलब इक्वालिटी शुड नॉट बी कंप्रोमाइज्ड. ठीक है, मतलब ये यस डुअल जीरो गुड. हाँ, मतलब ये कि ट्रिलियन हैज डुअल जीरो. यस आस्था वासी हर्षवर्धन, यू वर राइट. हाँ, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ द इंडिया जीडीपी इज राइजिंग, अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो इससे ये नहीं पता चलेगा कि पॉवर्टी इज डिक्रीजिंग और नॉट. देयर इज नो गारंटी. ऐसा भी तो हो सकता है कि रिच लोग और रिच हो रहे होंगे, सो रिच आर बिकमिंग वेरी रिच एंड द पुअर आर स्टिल देयर, और दिस इज. तो इसलिए सिर्फ ग्रोथ से या जीडीपी के आंकड़ा से ये नहीं बता सकता कि वेदर आई मीन आवर ग्रोथ इज फाइन और नॉट, है ना? So that is an issue. जैसे UNDP की रिपोर्ट आई that India among top countries with high income and wealth inequality. इनकम हाई लेकिन wealth inequality बहुत ज्यादा है. That is what the UNDP report says. ठीक है, so persistent wealth divide is driven by various factors, globalization, technological advances and all. So these are the things being talked about. फिर उन्होंने World Inequality Report 2022 को कोट किया है. The author has quoted. Then you can quote these things. Oxfam की एक रिपोर्ट आती है, richest 1% in India owes more than 40% of the total wealth. जो 1% अमीर है इंडिया के, वो 40% ज्यादा पूरा कंट्री का वेल्थ उनके पास है, 40% ज्यादा. सो ऑफ कोर्स दिस रिफ्लेक्ट्स दैट इंडिया इज हैविंग हाई इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ वेल्थ. ठीक है, तो इनइक्वालिटी होना जनरली बहुत अच्छा नहीं माना गया है. इनफैक्ट इट इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी, है ना? वी हैव डिस्कस्ड इट इन आवर पेज सेशन. देखो इस तरह की बात भी कही गई. ठीक है, इतना मैप अपने याद रखना है. दूसरी चीज, एक दो चीज आपको याद रखना है कि especially after COVID, there are a lot of reports were coming in that the COVID actually has deepened inequality. Post-COVID world, है ना? And COVID-19 leaves a legacy of rising poverty, widening, and also these are the things being talked about. ठीक है, मतलब ये बता रहे हैं कि कोविड के बाद इनइक्वालिटी जो है वो काफी बढ़ी है वर्ल्ड लेवल पर भी. सो नॉट ओनली इन इंडिया बट एट द वर्ल्ड लेवल दिस हैज हैपेंड, है ना? तो ये बहुत सारे रिपोर्ट्स आई, द रिच हैज बिकम रिचर एंड द पुअर हैज बिकम पुअरर एंड ऑल. नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इनइक्वालिटी एंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, सो दिस इज अ लाइन व्हिच इज मेंशन्ड इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? Dash part of the constitution. Please tell me. We have discussed it. If you are my paid batch student, I have discussed it there. देखो, part 3 क्या? Fundamental rights. Part 4 is DPSP, Directive Principle of State Policy. Part 4A is fundamental duty. Part 1 talks about union and its territory. ठीक है. Okay. Please tell me the state in particular strive to minimize the income inequality in incomes and endeavor to eliminate inequalities in status facilities. So basically this line is talking about minimizing inequality, है ना? तो ये एक तरह का सोशलिस्ट आइडियाज हो गया कि नहीं, प्रो पुअर आइडियाज, है ना? और इट्स टॉकिंग अबाउट सोशल जस्टिस, है ना? राइट, मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी. गुड, हर्षवर्धन, गार्गी, यू ऑल आर राइट. पार्ट 4, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 38 क्लियरली सेज, है ना, मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम. ठीक है, 38, इफ यू रीड 39 आल्सो, वो भी इसी तरह की सिमिलर बात करता है कि रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात करता है आर्टिकल 39, राइट? यस, सो बी एक्चुअली पार्ट 4 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, you should be knowing it. This is very very important. Yes, Gargi, Rishi Kumar Jha, you all were right. ठीक है, तो वही वो अनइक्वल रीसेंट ग्रोथ की बात कर रहे हैं. ही इज कोटिंग सम डेटा, तो उतना डेटा आपको नहीं याद रखना है, बट यस कि रिसेंटली द ग्रोथ्स हैव हैपेंड, बट यही है इनइक्वालिटी एक इशू है. दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना? सो ही इज एक्चुअली फोकसिंग ऑन द सेम थिंग, फ्रॉम वायलेंस टू डिजीज, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स एंड ऑल्सो दीस आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट.
सो मेन चीज जो है ना, द ऑथर इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इनइक्वालिटी. ओके. The next is changing partners. Nitish Kumar and edifying volte faces are an insult to voters of BR. So basically, I hope you are aware. ये मैंने yesterday discuss किया था. We had discussed it yesterday as well. That actually earlier Nitish Kumar was having an alliance with Nitish Kumar's political party. Janata Dal United was having alliance with RJD. So both were in the alliance. ठीक है. But recently they have broken the alliance, and now Nitish Kumar has done an alliance with बीजेपी. ठीक है. सो बीजेपी से उन्होंने अलायंस कर लिया. ओके. सो नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड हैज डन an alliance with BJP, and earlier actually Nitish Kumar was the CM and Tejasvi Yadav was the deputy CM. Similarly, यहाँ right now after the change of alliance, Nitish Kumar will be the chief minister and these two are the deputy CM from BJP. ठीक है. विजय कुमार सिन्हा एंड सम्राट चौधरी. ओके. सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. तो इसी पर है थोड़ा सा एडिटोरियल में क्रिटिसिज्म वगैरह किया गया है. सो ही हैज चेंज द पार्टनर्स मल्टीपल टाइम्स. इनफैक्ट ही हैज टेकन ओथ 9th टाइम. 9वीं बार एनडीए में है ना, आफ्टर रिटर्निंग टू एनडीए. सो ही हैज टेकन द ओथ. एनडीए जो बीजेपी के अलायंस को एनडीए कहते हैं, और करेंटली जो कांग्रेस का जो अलायंस है उसको इंडिया अलायंस कह रहे हैं ना, इंडिया अलायंस. ठीक है. ओके. यस, दैट इज व्हाट यू शुड बी डूइंग इट. ठीक है. हाँ. सो वही बता रहे हैं कि ओनली फ्यू वीक्स अगो एक्चुअली मिस्टर कुमार, नीतीश कुमार वाज एक्चुअली द पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस, है ना, व्हिच वाज इंडिया अलायंस इज कंसीडर्ड एज एंटी बीजेपी अलायंस, है ना. तो एंटी बीजेपी अलायंस है. तो उसी की बात कर रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस है तो एंटी बीजेपी अलायंस था. सो ही बिकेम अ पार्ट ऑफ दैट. नाउ ही हैज एक्चुअली डिसाइडेड टू मूव टुवर्ड्स द बीजेपी एंड आल्सो दीस आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट. इससे बहुत डिटेल नहीं जाना, बट जस्ट हैव अ बेसिक आइडिया. पॉपुलिज्म डज नॉट हेल्प पब्लिक हेल्थ. पॉपुलिज्म मतलब क्या होता है? Measures taken to become popular. यानी कोई भी ऐसा काम जो फेमस होने के लिए किया जाए उसको पॉपुलिज्म कहता है. तो कह रहे हैं कि अगर पॉपुलिज्म यानी फेमस होने के लिए कोई काम किया जाए तो उससे पब्लिक हेल्थ यानी गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल्स है ना, जो पब्लिक जनता के लिए जो हेल्थ केयर, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, है ना. So these things will not improve. तो उसी पर उन्होंने आर्टिकल लिखा है. And in the heart of India's bustling cities and tranquil villages there is a silent significant fighting rages on public health and all. ठीक है. तो पब्लिक हेल्थ की बात करें, जैसे स्मॉल पॉक्स की इरेडिकेशन की बात करें, मीजल्स एंड ऑल दीस अदर डिफरेंट डिजीजेस ऑथर इज टॉकिंग अबाउट. नाउ सिंस दिस इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन. देखो एक जगह इसकी बात की गई, इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये स्टेट की प्राइमरी ड्यूटी है. दिस इज मेंशन्ड वेयर? पार्ट 3, पार्ट 4A, पार्ट 1. The state shall regard the raising of level of nutrition and standard of living of its people and improving public health. ये भी मैंने पढ़ाया in paid classes. I still remember. This is mentioned in part 3, part 4, part 4A, part 1. Where? कहाँ मिलेगा? Yes, the right answer is part 4. Sorry. हाँ, yes, part 4 TPSP में. Okay. मैंने बताया पार्ट 3 इज फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 देन दिस इज फंडामेंटल ड्यूटी. ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है. द राइट आंसर इज बी. यस, हर्षवर्धन गार्गी, ऋषि कुमार झा, यू वाला राइट, है ना. लिखा ना, द स्टेट फॉर आर्टिकल 47 टॉक्स अबाउट रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, है ना. एंड ये लिकर बैन की बात यही कही गई आर्टिकल 47 में, लिकर बैन, है ना. ओके. सो द राइट आंसर इज बी इज द राइट आंसर. यस, गार्गी, हेमंत सैनी, यू वाला राइट. है ना. कंसिडर स्टोरी ऑफ डेंगू. तो कुछ एग्जांपल बता रहे कि जब डेंगू आता है, मैंने बताया डेंगू कम्स, है ना, कि उसके कोई तो पॉलिटिकल लीडर्स क्या होते हैं कि स्टेट में सेट अप इमीडिएट रिलीफ कैंप, तो रिलीफ कैंप वगैरह ओपन कर दिया था. बट ये शॉर्ट टर्म मेजर है. ठीक है. लॉन्ग टर्म में क्या है? वी मस्ट फोकस ऑन लॉन्ग टर्म. ठीक है. प्रिवेंशन कैसे? वैक्सीन पर रिसर्च करने के लिए. सो वी नीड टू इन्वेस्ट ऑन वैक्सीन रिसर्च. ठीक है. तो ये मेन इनका कहने का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल इफ द डेंगू कम्स, let's say in any city, so that the doctors get panic. The politicians start setting up कि चलो ठीक है hospitals वगैरह की बात हो and health care and all. थोड़ा मतलब जैसे मेडिसिन वगैरह में एलोकेशन बढ़ा दिया गया, but that's not the thing. We have to fight long term. तो long term fight करने के लिए इसकी वैक्सीनेशन पर रिसर्च कराना होगा, है ना. So for that we have to actually allocate funds, है ना. फंड एलोकेशन होना चाहिए जहां पर रिसर्च होता है ना. मतलब जो वैक्सीन रिसर्च होता है वहां उसको फंड देना पड़ेगा उस कंपनी को,
या उस ऑर्गेनाइजेशन को, एंड देन इट्स अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, है ना. वी हैव टू फाइंड द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, नॉट द शॉर्ट टर्म सोल्यूशन. दैट इज व्हाट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट, है ना. फिर इसमें अवेयरनेस क्रिएट करना होगा कि भाई डेंगू कैसे कैसे होता है. सो जब डेंगू फीवर नहीं भी चल रहा हो तो भी इसको स्प्रेड करना है ना. जिससे क्या होता है, सितंबर अक्टूबर में बहुत ज्यादा हो जाता है कभी कभी. बट रेस्ट ऑफ द ईयर वी हैव टू क्रिएट, द गवर्नमेंट हैज टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग डेंगू, कि देखिए इस चीज से अवॉइड करना, ये चीज से बचना है ना. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच इज इंपॉर्टेंट एंड ऑल. सो द कंटेम्परेरी टाइम्स ही इज टॉकिंग अबाउट पीएम पोषण अभियान. देखो ये एक स्कीम है गवर्नमेंट की, है ना. पोषण अभियान, पहले उसको नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी कहते थे. टू टारगेट स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया, है ना. स्टंटिंग क्या होता है, लो हाइट, है ना. लो हाइट फॉर एज, अगर किसी के उम्र के हिसाब से उसकी हाइट कम है. अंडर न्यूट्रिशन, है ना. एनीमिया वेयर इज देयर इज एक्चुअली आयरन का शॉर्टेज है ना, विच में अफेक्ट द रेड ब्लड सेल एंड ऑल. ठीक है. एनीमिया एक्चुअली हैपेंस अमंग प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन. ठीक है. प्रेग्नेंट वुमेन में, चिल्ड्रन में खास के देखा जाता है एनीमिया, है ना. लो बर्थ रेट. सो ये सबको फाइट करने के लिए पीएम पोषण अभियान इज देयर, लॉन्च फ्रॉम जो डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, है ना, मार्च 2018. राइट. सो दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट. देन द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट टीबी केसेस. जैसे यही वाले इसको कोट किया है, देखो ना, 21.4 लाख टीबी केसेस नोटिफाइड इन इंडिया एट 2021, 18% हायर देन 2020. तो 2020 में जितना था उससे 18% ज्यादा 2021 में हुआ. ठीक है. टीबी, एंड इनफैक्ट आई होप यू आर अवेयर दैट इंडिया में सबसे ज्यादा यू विल फाइंड टीबी केसेस. If you talk about the world level, India is having the most number of TB cases, tuberculosis. Okay, कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में, there is a vaccine for TB, उसका नाम क्या है, कोई बता सकता है. Okay, so India had highest number of TB cases globally 2022 says WHO, recorded 2.8 million cases and all. ठीक है. तो ये सब चीजें हैं. Now, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया है. एंड व्हाट इज द टारगेट ईयर, 2024, 25, 30, 40. Means this is the target year that by the end of this year we should ensure elimination of TB in our country. Anyone? ये बताइए. और ये बताइए कि टीबी का वैक्सीन क्या है. है ना, बीसीजी वैक्सीन आपने नाम सुना होगा. Anyone? टीबी मुक्त भारत. What is the target year? Okay, 2025, है ना. So B is the right answer. Yes, Karki, very good. B is the right answer. प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, the target is to eliminate TB by 2025 and TB, है ना. So B is the right answer to this question. Okay, है ना. So just have an idea. इसको पढ़िएगा थोड़ा. इसके लिए एक ई-निक्षय वेबसाइट भी लॉन्च किया गया, ई-निक्षय, इसको पढ़िएगा. Okay. Yes, आस्था अवस्थी, you were right, है ना. Yes, Gargi, BCG vaccine is there, हाँ. Okay, then best of test cricketer showcases skill better but is not short of excitement at all. देखो अब क्या बता रहे हैं कि हैदराबाद और ब्रिस्बेन दोनों 9443 किलोमीटर अवे है, बट बोथ द सिटीज विटनेस्ड अ वेरी गुड क्रिकेट मैच एंड ऑल. दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. यहाँ पे हैदराबाद है इंडिया में और ये है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में. दोनों जगह मैच हुआ. एक्चुअली हैदराबाद में मैच हुआ इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, एंड इंग्लैंड डिफीटेड इंडिया इन टेस्ट. सिमिलरली ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज हुआ, एंड सरप्राइजिंगली वेस्ट इंडीज डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम. तो यहाँ पर इंग्लैंड जीत गया टेस्ट मैच, एंड यहाँ पर वेस्ट इंडीज जीत गया. ओके, सो जस्ट हैव एन आइडिया. दिस वाज इन द न्यूज. इंग्लैंड स्टंट्स इंडिया इन थ्रिलिंग 28 रन विक्ट्री इन फर्स्ट टेस्ट इन हैदराबाद. दिस इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. और जो दूसरा है उसमें है कि वेस्ट इंडीज स्टंट्स ऑस्ट्रेलिया 27 साल बाद, बिकॉज दिस हैज बिकम अ रिकॉर्ड दैट आफ्टर 27 years द वेस्ट इंडीज हैज डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया इन देयर लैंड. उनकी जमीन पे जाकर के टेस्ट मैच में हराया है. ये 27 years बाद हुआ. और शमर जोसेफ एक्चुअली प्लेड अ वेरी, आई मीन he's got 7 wickets. ये शमर जोसेफ फ्रॉम वेस्ट इंडीज, and he has taken 7 wickets and all. And Shamar Joseph's stunning 7 wickets and 68 runs scripted a thrilling 8-run victory in the pink ball test match at Gabba. Okay, ending a 27-year drought for West Indies in Australia. तो 27 years बाद वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर उसको हराया टेस्ट में. ठीक है, दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. तो इसी के बारे में एडिटोरियल में डिस्कशन है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. दिस इज अबाउट द क्रिकेट मैच. ओके, यस. नाउ ओपिनियन पेज में अर्ली न्यूट्रिशन इंपैक्ट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट. तो अब क्या बता रहे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, वही समझदारी, कॉग्निटिव थिंकिंग, है ना. यानी ये ब्रेन से रिलेटेड है, ब्रेन डेवलपमेंट समझ लो.
ठीक है, कॉग्निटिव मतलब जो आप पढ़ोगे, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव। तो अगर अर्ली न्यूट्रिशन, अगर चाइल्डहुड में न्यूट्रिशन यानी प्रॉपर न्यूट्रिशन, इफ प्रॉपर न्यूट्रिशन इज नॉट गिवन टू द चाइल्ड इन द अर्ली डेज, यानी जब चाइल्ड डेवलप हो रहा है 0 से 5 ईयर्स में, अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, सो इट्स ए कॉग्निटिव डेवलपमेंट विल बी इम्पैक्टेड, यानी उसको समझने की, पढ़ने की, अंडरस्टैंडिंग करने की, नॉलेज की, इसकी डेवलप जो है वो उतना अच्छे से डेवलप नहीं करेगा। सो यू कैन से द ब्रेन विल नॉट डेवलप प्रॉपरली और समथिंग लाइक दैट, दैट इज व्हाट द आइडिया इज। ठीक है, सो इसी की बात कर रहे होता है ना। सो इस कोटिंग वर्ल्ड डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट है, लिंक्स बिटवीन अर्ली अंडर न्यूट्रिशन एंड 4 की कॉग्निटिव स्किल इन चाइल्डहुड, वर्किंग मेमोरी, इनहिबिटरी कंट्रोल, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इम्प्लिसिट लर्निंग एंड ऑल। तो ये बता रहे हैं कि रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं कि अगर चाइल्ड का न्यूट्रिशन ठीक से नहीं हुआ, इफ देयर इज अंडर न्यूट्रिशन इन द अर्ली चाइल्डहुड, इट विल इम्पैक्ट मेमोरी ऑफ अ चाइल्ड, है ना, लर्निंग, वर्किंग मेमोरी, है ना, इनहिबिटरी कंट्रोल, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये सब पर असर पड़ता है अगर चाइल्ड को बचपन में अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिला। इसीलिए ना जो पीएम पोषण अभियान एंड ऑल, है ना। फिर एक और था मिड डे मील स्कीम, आपने नाम सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मिड डे मील स्कीम। इसमें क्या होता है, इन मिड डे मील स्कीम during, I mean, in schools, in the government schools, poor children are provided foods, उनको खाना दिया जाता है ना, ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ उनको खाना भी मिले, and a nutritious food should also be given, है ना, that's the idea. Okay, majority use DG यात्रा unknowingly or under compulsion says survey। अब देखो क्या है, एक कॉन्सेप्ट है DG यात्रा का, उसमें ये होता है कि आप this is specially for I mean those who are flyers, those who actually take planes, एरोप्लेन की मदद लेते हैं फ्लाई करने के लिए, ठीक है। सो those who are actually travel by plane, for them there is a concept of DG यात्रा। उसमें क्या होता है कि अगर आप ना एक आइडेंटिटी बना लो फेशियल रिकॉग्निशन का, DG यात्रा आईडी, उसके बाद क्या होगा कि जैसे अगर आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो आपको कोई टिकट या बोर्डिंग पास नहीं दिखाना होगा, बोर्डिंग पास दिखाना होता है, जैसे ट्रेन में टिकट होता है ना, वैसे ही समझ लो, इट्स लाइक दैट। बट इफ यू आर हैविंग अ फेशियल रिकॉग्निशन आईडी, तो आपको टिकट नहीं दिखाना, आपके फेस रीड करके आपको एंट्री मिल जाएगी, दैट्स द आइडिया, है ना। दिस विल एक्चुअली रिड्यूस द टाइम, है ना, सो दैट्स द इशू, है ना। इसका नेगेटिव भी लोग कहते हैं कि बिकॉज प्राइवेसी माइट बी कंप्रोमाइज्ड एंड ऑल, कि डिजिटल डेटा है तो व्हाई शुड आई गिव माय डेटा एंड ऑल, सो दीज आर द थिंग्स। लेकिन इसमें ये कहा था कि डीजी यात्रा से the things will become more faster and all due to facial recognition, चेहरा रिकॉग्नाइज करके आपको पास मिलेगा, एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। सो दैट्स द आइडिया। ओके, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस, ये मैंने बहुत डिस्कस किया है, ठीक है ना। फॉर दैट अ कमिटी हैज बीन सेट अप लेड बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद, है ना। प्रोज ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन में क्या होगा कि लेसर इलेक्शन होगा, एक ही बार में सारे इलेक्शंस हो जाएंगे। सो लेसर इलेक्शन होगा कि क्या होगा, लेस एक्सपेंडिचर होगा, लेस वेस्टेज ऑफ मनी, है ना, मोर टाइम टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, है ना। क्या होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय कई बार साल में एंगेज होते हैं इलेक्शन कंडक्ट कराने में, जैसे गवर्नमेंट टीचर्स एंड ऑल, सो वो नहीं होगा। फिर जैसे सीआरपीएफ एंड अदर पुलिस फोर्स आर रिक्वायर्ड, तो उनको फ्री टाइम ज्यादा मिलेगा ना, दे विल गेट मोर फ्री टाइम टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स रादर देन कंडक्टिंग इलेक्शंस। तो ये सब प्रोज है, ठीक है। मोर डेवलपमेंट टाइम, इसलिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम इनफोर्स होगा, तो देयर विल बी मोर डेवलपमेंट चांस एंड ऑल। कॉन्स में ये कह सकते हो कि व्हाट आर द कॉन्स, कि इसको कहते लोग कि एंटी फेडरल है, बिकॉज इफ द इलेक्शन इज डन एट द स्टेट लेवल एंड यूनियन लेवल एट वन टाइम, देन व्हाट विल हैपन, द स्टेट इशू विल बी कंप्रोमाइज्ड। स्टेट इशू नहीं होगा, नेशनल लेवल पर सिर्फ इलेक्शन होगा, नेशनल इशूज पर। जो स्टेट का इलेक्शन होता है स्टेट इशू को देख के होता है, और नेशनल लेवल का इलेक्शन नेशनल इशू को देख के, ठीक है। तो वो स्टेट इशू कंप्रोमाइज हो जाएगा, इट माइट बी कंसिडर्ड एज एंटी फेडरल, ठीक है। दूसरी चीज है कि जब मोर इलेक्शंस होता है तो मोर अकाउंटेबिलिटी होती है। अगर हर कुछ दिन पर इलेक्शन होगा तो अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होती है गवर्नमेंट की, विच इज कंसिडर्ड एज मोर हेल्दी फ्रॉम डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। फिर और क्या होता है कि मोर इलेक्शंस हो गए तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ काम कराती रहती है ना। जैसे अभी सेंट्रल लेवल इलेक्शन हुआ, उसके बाद फिर कहीं स्टेट में इलेक्शन होगा, तो वो स्टेट की गवर्नमेंट काम करेगी, है ना। So that also happens. So when there is more election, there is more pressure on the politicians to work. These are the things you can say. तो ये सब different चीजें हैं simultaneous election या one nation one election से related, ठीक है। So these are the things being talked about here. Okay? Yes. ED questions लालू for over 8 hours in land for job case, है ना। We have discussed about it. Prevention of Money Laundering Act के अंदर काम करती है ये, है ना। So go and read it when there is anything, है ना। We'll be
be talking about that. Elections to 56 Rajya Sabha seats on February 27. So 27 फरवरी को 56 राज्यसभा की सीट्स पर इलेक्शन होगा, ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो वी शुड बी नोइंग इट. नाउ ये क्वेश्चन आया जैसे जामिया में पूछा है उन्होंने ये सवाल, तो इस तरह का सवाल स्लैट में सिटी सब जगह आ सकता है. हु अमंग द फॉलोइंग वोट फॉर द राज्यसभा एमपी इलेक्शन? इलेक्टेड लोकसभा एमपी, इलेक्टेड एमएलएस एंड इलेक्टेड लोकसभा एमपीज, एमएलएस एंड एमएलसीज. जब राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है तो कौन लोग वोट करते हैं राज्यसभा के एमपी को चुनने के लिए? व्हाट इज द राइट आंसर? सबको लाइक बटन प्रेस करते जाओ. एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Who votes? Who among the following votes for the Rajya Sabha MP election? Anyone? बताइए. ट्राई कीजिए, अगर आपको नहीं भी आता तो भी ट्राई करने में क्या जा रहा है. पीपल आर सेइंग ऑप्शन सी. नो, एक्चुअली इलेक्टेड एमएलएस इज द राइट आंसर, ठीक है. तो सिर्फ इलेक्टेड स्टेट के जो एमएलएस हैं वो वोट करते हैं एमपीज के लिए, ठीक है. लोकसभा के एमपी नहीं वोट करते हैं, ठीक है. सो बी केयरफुल. सो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज फ्रॉम स्टेट वोट फॉर द वोटिंग ऑफ राज्यसभा इलेक्शन. तो ये ऐसे पूछेंगे राज्यसभा एमपी इलेक्शन का इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? सो द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ राज्यसभा एमपी कंप्राइजेस ऑफ व्हाट? सो द राइट आंसर इज elected MLAs. So B is the right answer to this question. ठीक है, you should be knowing it. Foreign Secretary arrives in Bhutan amid focus on India's neighbor. So Foreign Secretary is with Mr. Vinay Mohan Quatra, है ना? He has visited Bhutan. ठीक है. Here is Bhutan. Okay. Now Maldives main opposition party mulls impeachment against President Moizu. है ना? Mulls मतलब प्लान करना, इरादा करना. ठीक है. I hope you are aware. Actually, here is mainland India. This is Maldives. ठीक है. Okay. So recently we have seen some issues with Maldives and all. Last year in November, Mohamed Moizu became the president, and he is considered as slightly pro-China, है ना? And that is why since then we have seen some issues. The president has said that Indian military should be withdrawn by 15th March and all. तो ये सब चीजें न्यूज में थी. उन्होंने कहा था कि 15 मार्च तक इंडिया के मिलिट्री विड्रॉ कर ले. But the opposition party, the main opposition party, has started initiated impeachment process. Impeachment तो समझते होंगे, process of removal of president. That's called as impeachment. ये यूएसए में भी होता है. Even in India also there is a concept of impeachment in Article 61. ठीक है. हाँ, so they have initiated. Maldives Democratic Party, MDP एक पार्टी है वहाँ की, opposition parties है ना. So they have initiated impeachment process against the president. Let's see whether it will pass it or not. ठीक है. देखना यह है कि वो एमडीपी जो है, जो अपोजिशन पार्टी है, वो इंपीचमेंट प्रोसेस इनिशिएट कर पाती है कि नहीं, मतलब कंप्लीट कर पाती है कि नहीं. दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. क्योंकि मालदीव्स न्यूज में, सो यू शुड बी नोइंग इट. मालदीव्स रिलेटेड, व्हाट इज द कैपिटल? सो माले इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स, है ना. करेंसी पता होना चाहिए, है ना. व्हाट इज द करेंसी? रुपया, है ना. और यह कि लैंग्वेज क्या है ये बताइए आप. व्हाट इज द लैंग्वेज, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मालदीव्स used? Just go and find out, है ना. This is a homework. So after the class is over, write it in the comment section, the language, the most prominent language used in the country of Maldives. So please answer it. ठीक है. Okay. So you are watching this class. नीचे जाना है, one-on-one counseling session है. So link is given here. Click on this link and you will get this Google form, and everyone should fill this Google form. So this is all about today's class. Please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S exam prep app. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.